Parents, this parent orientation session is for grade 3, 4, and 5 parents, specifically designed for you. We have already conducted two sessions, one for Balvatika and the other one for grade 1 and 2. This time, this is a new initiative of Bright Start to cater all the needs of the parents who are unable to come. Some of the parents are posted outside the city in far off places and they show inability to join the PTM. And first PTM, which is parent orientation, is really, really important for everybody. But if there are certain problems, if the parents can't come, then we are very much there with you to provide each single thing at home also. Why not use technology when it is readily available and when we are empowered enough, educated enough, skilled enough to give all the things which are actually needed to our parents and students? Welcome all the dear parents of grade 3, 4, 5. And now, before starting this session, I would like you to introduce two of our coordinators. One is the head coordinator of K28, Mrs. Nishu Marwa. She is the head coordinator, and the other one is Aarti Trehan, who is Aarti Raheja now, and she is coordinator for grade 3, 4, 5, and she would be meeting you as class teacher as well as coordinator in this session. So welcome you, Aarti, in this orientation session. Would you like to speak something? Thank you very much for your commitment. She has already prepared this PPT and she's more than happy and telling me again, thank you so much, ma'am, that you have given me this chance. And I worked on this and I have learned so much. So you can see the learning attitude of teachers, though they are attending all the CBSE trainings, 50 hours, completing 50 hours, and they are trained teachers, but still they are hungry to learn more. And this is the beauty of Bright Start team. Thank you, Nishu. Thank you, Aarti ma'am. Please carry on with your work. I'll proceed further. So this is the team. And now let me introduce you with the school vision. We are, we all are working for the country. When we say Jai Hind, we are dedicated, we are committed to give 100% to the country. And the country has given us new education policy, which is national education policy now. This is NEP 2020. And Bright Start is committed to instill among the learners a deep rooted pride of being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, deeds, as well as developing knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights. Not only rights, but the duty to, that is, sustainable development and living global well being, thereby reflecting a truly global citizenship. We are not only Indians, but we are global people. When we are saying global people, then we are having an aim to become Vishwaguru once again by empowering everybody in the country. सभी का साथ और सभी के विकास के लिए आवश्यक है कि हम सबको include करें. To fulfill this mission of Bright Start, the goal for this year is inclusion, and the mission is to facilitate learners with flexible, multidisciplinary, and holistic education, ensuring identification and fostering unique capabilities of each learner. And we seek to develop among students knowledge, skills, values, and attitude, the competency that promote responsible commitment to human rights, sustainable living, and global well being. Peace must prevail across the country, across the world. The agenda of this parent orientation is introduction of the term preparatory stage. We are talking about preparatory stage as per the guidelines of NEP 2020 and NCFSE 2023. We will discuss about academic policy, the assessment and evaluation. But before that,
What should be the pedagogy to transact this curriculum to our learners for the holistic progress card? What other areas of development having two parts, that is scholastic and co-scholastic areas? What should be the reporting mechanism? If there is any concern, any issue or suggestion or any feedback, how the parents' queries will be addressed, what will be the mode of communication and interaction among the school stakeholders. Then comes preparatory stage, which is age group 8 to 11. In grade 6, from age 6 to 8, children were there in grade 1 and 2. Now they are 8 already. From 8 to 11 journey, that is from age group 8 to 11 journey, is will be completed in preparatory stage. So what we are doing in preparatory stage, this is a 3-year phase bridging play based foundational learning and formal schooling. This is a bridge between, this is foundation stage K to 2, and now in between there is a bridge of 3 to 5, that is preparatory stage, and here comes 6 to 8, grades 6 to 8. So here in two, it is the stage which is between the two important crucial stages, foundation and formal. This is quite informal and this is formal. So that means if it is the bridge stage, that means there is something which is going to balance between the two stages. So here we have focus areas, and the focus will be in again FLN, that is foundational literacy and numeracy. Other than enters another new subject, which is TWAU. Earlier it was called as EVS, Environmental Studies, but the name of this subject has been changed now. This is TWAU, the world around us. We should be aware, the children should be aware what is the world around us, who all are there around us. So that is TWAU. And here we will use interactive and explanatory experiential learning methods, where the children should experience how the learning happens. Through reflection, they will get to know that this is their own learning and this is how they are all responsible for their own learning. So this is a transition from play way methods to interaction, interactive learning. In this age group, the children should be given a lot of chances to interact with their peers, in the group, in pair square pair, and then with the community around. So, frankly speaking, there is some sort of formal classroom pedagogy where the teacher would be participating actively as well as the learners will be also be there. So, what is the new approach for grade 3 to 5? The focus is completely on holistic development, not only on academics, but and in each subject there should be concept building, the competency based education. But this gradual shift will definitely lead to fruitful part, that is the children will become holistically developed. So here we will use the approach that is integrated way of learning, and this is designed to reduce the memorization as well as stress in the children of not forgetting things, the answers which they have learned last night for writing the exam today for in different subjects. They used to stress a lot because of the because they had a fear, they had a phobia that they will forget. रात को जो हमने याद किया फिर सुबह उठ के हमने रिवाइज किया, बाहर तक आते आते के बच्चे अपनी नोटबुक में को वापस ऐसा लगता था कि साथ लेके चलें एग्जाम में, वो जो फियर था वो कैसे खत्म हो सकता है। तो उस अप्रोच को लेकर अब हम आ रहे हैं, सब लोग लेकर आ रहे हैं अपने स्कूल्स में, एंड दैट इज वेरी मच नीडेड, एंड आई थिंक पेरेंट्स मस्ट अप्रिशिएट दिस. Parents should not criticize this approach. Why we are giving some extra type of questions in the question paper, if not picking the questions directly from the notebook, which they've been done in the notebook, how will they implement? How do they apply? And if losing 1 or 2 or 3 marks in a paper, that's okay. But then the children learn from the mistake. And why can't they lose marks if they're making mistakes? So children should not be pointed out by the parents or by the teachers for this, but what all they have learned from the mistake is really important. That is needed also. So, what are the curriculum features of for this session? I mean, for grade 3 for 5, this is stage specific. You know, there are new NCRT books available in the schools, and children are carrying their books now. The books have been changed. The assessment pattern is completely changing.
and in days to come, that is completely change. So are you ready? Whether you are ready for change or not, it doesn't matter really. What matters is if you accept this change beautifully, honestly, and responsibly, with a sense of contribution, you definitely will find that there is paradigm shift in the thought process of the चिल्ड्रन ऑल्सो कंप्लीटली अलग सोच हो जाएगी उनकी। वो एग्जाम को एग्जाम की तरह से नहीं, लेकिन उसको फिर कहते हैं कि उत्सव की तरह से लेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी रोज ही वैसी ही चलेगी जैसे कि परीक्षा के लिए होगी। एवरी सिंगल डे इफ देयर इज एन असेसमेंट वेयर द चाइल्ड इज नॉट पुश्ड टू प्रिपेयर स्पेशली बट what all he knows right now, if the child is assessed on that and the feedback is provided to the children, and the actual that feedback is not only provided by the teachers but by the students, the peers also, the child assessing himself or herself also, that will bring the change in the child. Otherwise, putting pressure, giving stress to the child is bringing negative changes in the personality of the children, and there is no character building, right? So this is what is learning style बच्चे का क्या है. We should emphasize on that कि वो किस तरीके से सीखता है, उसको किस तरह से सीखना पसंद है, उसको चीजें समझ में कैसे आती हैं. To identify the learning style of the student, parent support is also needed. Student support is also needed. Then the teacher would be able to provide that support to the child, to you. But if you do not give that liberty to the teacher and to the school, but you are fussy about that now we want only pen paper and pen paper and pen paper, we don't want any activity, my child should not participate in any activity because उसका time waste होगा, तो definitely will go with your opinion. Okay, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो वैसे करेंगे, but there is no change in the NCERT books. हमारे यहाँ NCERT books ही लगेंगी, हम उनको ही beautifully पढ़ाना चाहते हैं. जो थोड़ी बहुत कमी अगर रहती है तो उसमें सजेशंस की पूरा खुला हुआ है सारी चीज़ें कि आप आइए, हमें बताइए, अगर आप हमसे ज़्यादा बेटर दे अगर बता सकते हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट वेलकम यू पीपल. दिस इज योर स्कूल, यू हैव चोजन दिस स्कूल. तो एनसीईआरटी बुक्स, यू नो द नेम्स ऑफ द एनसीईआरटी बुक. दैट इज इंग्लिश के लिए संतूर है, हिंदी इज पूर्वी, मैथ के लिए मैथ मिला है. एक्टिविटी बेस्ड कंटेंट है सारी किताबों में, इतनी सुंदर एक्टिविटीज हैं. उस एक्टिविटी को हम चाहते हैं कि बच्चा करते करते सीख जाए, ना कि लिखते लिखते याद कर करके बार बार लिख के उसी क्वेश्चन को टेस्ट में करके फिर एक गलती निकली थी मात्रा की, फिर वो निकली थी, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा उसको इम्प्रूव करता है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, दिस इज डन अवे विद. इसको खत्म हो चुकी हैं चीजें. इसको डोंट एक्सपेक्ट कि ये चलता रहे. लिटिल बिट चलेगा बिकॉज यू नो वीनिंग ऑफ करना बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होता है. पुरानी आदतें जो लगी होती हैं एकदम से जाती नहीं है. इसलिए द फोकस इज ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशन. बच्चा उसको लैंग्वेज में भी कैसे बोल पाता है. कोई अचानक से आपसे पूछा जाए कि अगर मैं ये होता, अगर मैं एक ये पेड़ होता जिसको कि कुल्हाड़ी से काटा जा रहा होता, तो उसकी फीलिंग्स बताइए. तो फिर आप बता सकते हैं, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज लैंग्वेज, दैट इज एक्सप्रेशन, that is the expression of emotions and feelings, and thus understanding how the other person is feeling at this moment when we are doing all this. तो वो चीजें अगर हम बच्चों को बोलने लगे बच्चा, और उसको फिर अगर वो लिखने लगे, तो क्यों नहीं वो ऑथर बन पाएगा, क्यों नहीं वो किताब राइटर बन जाएगा ना फिर. तो ये तरीका क्या सही तरीका नहीं है. आई थिंक दिस इज राइट वे, और इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में लगाने के लिए. But other than all these NCERT books of Hindi, English, and mathematics, and of course TWAU also, what else is new for this class 3, 4, 5 this year? So this is complete shift जो लाने वाला है. Complete shift जो लाने वाली ये चीज है, वो क्या चीज है? वो है CT and AI. That is computational thinking and artificial intelligence. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स रियली वेरी इजी. उसके लिए आपको कोई सिस्टम बाय करने की जरूरत नहीं कि मैम हमारे तो कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, हमारे बच्चों के पास तो टैब भी नहीं है. कुछ भी होने की जरूरत ही नहीं है. किताबें भी मार्केट में भी CT एंड AI की अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमें बाद में पता चली है. तो जो कंप्यूटर की किताब आ गई, हम उसके साथ में ही बच्चों को CT एंड AI पढ़ाएंगे. दैट इज आवर कमिटमेंट. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. ERP जिंदाबाद, आपका साथ जिंदाबाद. तो बच्चों को सारा कुछ आपके मिल जाएगा. तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या चीज है? दिस इज, इट हेल्प्स डेवलप चिल्ड्रन लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. बट उसका एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, दैट इज सिक्वेंशियल प्रोसेस है. उसको आपको नहीं कुछ करना, बच्चे अपने आप सीखेंगे, टीचर्स अपने आप करवा लेंगे, because it includes a process, and that process includes pattern recognition, sequencing, basic coding concepts which are age appropriate. 3 वाले बच्चे को 3 का ही मिलेगा,
उसको 5 वाला नहीं मिलेगा। एज अप्रोप्रिएट है, ग्रेजुअल है, एज स्पेसिफिक है, इंटीग्रेटेड विद सब्जेक्ट्स है। इसलिए इसको अलग से सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर की किताब से पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको उसके साथ भी लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड किसमें? एनसीईआरटीज़ में इंटीग्रेटेड है। इसलिए उन्होंने कोई किताब नहीं छापी थी, बट करिकुलम इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज़ अदरवाइज़ पीपल विल नॉट ट्रस्ट अस। पीपल पीपल विल नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। तो जब तक एक अलग किताब नहीं आती, तो वो लोगों को लगता है कि नहीं झूठ बोला जा रहा है। तो ठीक है, अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ लर्निंग के साथ ही हम पढ़ा रहे हैं एंड we will prepare students for digital skills. तो AI कितना आना है, that all depends on the curriculum, not on us, and we will go with the curriculum. बांसुरी दूसरी किताब है। बांसुरी एक्चुअली पिछले साल भी हमने खेल योगा, खेल यात्रा और बांसुरी हमने लगाई, कृति हमने बच्चों को दी थी, टीचर्स को दी थी, लेकिन इतनी छुट्टियां हुई थी उस बीच में, बारिशों की छुट्टी है, फिर उसकी छुट्टी है, बहुत सारा कुछ हुआ था, तो टीचर्स वर नॉट रियली एबल टू इम्पार्ट दैट। उस वक्त ये हुआ था, बट हमारे टीचर लास्ट ईयर ही वो सब कुछ पढ़ चुके थे। इस टाइम तो उसको मैंडेटरी बना दिया गया है। लास्ट ईयर इट वाज थॉट कि किताब क्यों लगाई गई है। 65 और 65 सिर्फ 65 रुपए की 2 किताबें थी, जिसको कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे बहुत आसानी से पढ़ सकते थे और अपने आप पढ़ सकते थे। लेकिन मुझे बुरा लगने की मेरी कोई बात नहीं थी, बट आई फेल्ट कि हम अगर 65 रुपए की भी 2 किताबें बच्चों को नहीं देना चाहते, तो फिर एक्चुअली वी आर नॉट देयर टू सपोर्ट द लर्निंग ऑफ आवर चिल्ड्रन बियॉन्ड द बुक्स। बांसुरी नाम इतना सुंदर है, उसमें 4 चीजें हैं, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है और ड्राइंग है। म्यूजिक, ड्राइंग, डांस एंड ड्रामा। एक 65 रुपए की किताब में अगर आपको 4, ये खुद में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें आपको इंडिया के कल्चर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सस्ती किताब है और बहुत ब्यूटीफुल किताब है? और इतना कुछ जो आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, हम अधूरे हैं, ये बच्चे पूरे हैं। इनको म्यूजिक का पूरी नॉलेज मिल रही है कि इंडिया में कौन सी चीज कहाँ से आई है। तो डोंट यू थिंक दे विल अप्रिशिएट द ब्यूटी, द कल्चर, द डाइवर्सिटी एंड द हार्ड वर्क एंड द डेडिकेशन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी पीपल, making these streams as beautiful ones, even better than the previous one. तो मुझे लगता है कि जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द चेंज। काम तो करने के लिए आए हैं, काम करेंगे, बच्चे भी पढ़ने ही आए हैं, पढ़ेंगे। तो उसमें कम पढ़ाया जाए ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। जितना बच्चों को पढ़ाया जाए वो आगे किस तरीके से उनकी जिंदगी में काम आएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज ऐसी है? बांसुरी की बात करते हैं सिर्फ, बांसुरी में सिर्फ म्यूजिक की बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बांसुरी म्यूजिक वाले पार्ट को बिलोंग करती है, जबकि ऐसा तो नहीं है। और ड्राइंग में भी बिलीव करती है, क्योंकि ड्रॉ करते हैं ना बांसुरी को हम, वो कितने होल्स हैं काउंट करके, कितने कितने गैप पे है, तो बांसुरी बना, जो बच्चा ड्राइंग वाला वो बांसुरी बनाता नहीं है, कृष्ण जी की बांसुरी बनाते तो हैं ड्राइंग वाले। तो फिर वो जब कोई नृत्य नाटिका होती है और उसमें वहां होता है, तो वहां ड्रामा आता है, तो गोपियों का डांस भी होता है। तो पूरी चीजें अगर हम बांसुरी के इर्द गिर्द देखें, तो बांसुरी बजाने से क्या चीज होती है? इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन, it enhances breathing control, it develops musical sense, it promotes calmness and emotional balance. बांसुरी का आप फ्लूट सुनिए तो फ्लूट रिलैक्सेशन मेडिटेशन से म्यूजिक है। आप सुनिए जरा फ्लूट को, कितनी सुंदर लगती है। कितने बच्चों को तो फ्लूट ही नहीं पता होगा कि बांसुरी को फ्लूट बोलते हैं। अगर किताब का नाम ही बांसुरी बन गया, तो आप सोचिए कितने सुंदर नाम रखे गए हैं, सारे नाम कितने सुंदर हैं। इट इनकरेजेस अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन कल्चर। आप सोचो, इतनी जितनी भी इसमें आप बच्चे आपके पढ़ेंगे, आप पढ़िए साथ में उनके। मैं तो सोचती हूँ कि आप ये वाली जो किताबें हैं तो पेरेंट्स को ही पढ़ानी चाहिए अपने बच्चों को, अगर किसी को जो भी कुछ पसंद है। और इसमें मुझे लगता है कि कोई जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, डेफिनेटली उनके बच्चे तो उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ये किताब तो पढ़ी रहे हैं। अगर गणित नहीं पढ़ा सकते, तो कम से कम बांसुरी ही बजा रहे हैं उनके साथ में। एंड मुझे लगता है बच्चों के सामने क्रिटिसिज्म ना किया जाए किताबों का, स्कूल का, टीचर्स का, उनकी राइटिंग का, पर हम उनको और बेटर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ज़रूर सबको सहयोग करना चाहिए। खेल योगा आ गई। अभी तक ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई थी, सिर्फ़ सिखाई गई थी। हमने भी हॉबी क्लब बनाया था, हम चाहते थे कि बच्चे सीखें, क्योंकि पेरेंट्स अल्टीमेटली बोलते हैं, "आपने हमारे बच्चे को क्वायर में क्यों नहीं लिया? आपने हमारे बच्चे को ड्राइंग कॉम्पिटिशन में क्यों नहीं लिया?" तो बहुत ही स्पेसिफिक कंपार्टमेंटलाइज़ तरीके से सबकी सोच थी, जो कि अब जाके होलिस्टिक हुई है। पहले पढ़ोगे और तब सीखोगे, तभी तो डेमोन्स्ट्रेट करोगे। यहाँ पहले से हम करते होते थे,
हमारी गलतियों को सुधारा जा रहा है, सबकी गलतियों को सुधारा जा रहा है, तो ठीक है, गलतियाँ तो सुधारी ही जानी चाहिए। यहाँ पर अब खेल योगा है, योगा किया जाता था, उसका इतिहास क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, या उसमें को हम गलत तरीके से करते हैं, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, ये बताया नहीं जाता था। हम करते थे, हम स्पोर्ट्स डे में हम लोग भी करते थे, तब हम बताते थे। बट ये ऐसा नहीं था कि हर जो क्योंकि हमें ये डर लगता था, पेरेंट्स क्या कहेंगे? कई बार हमने कोशिश करी, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि डर लगता था, पेरेंट्स क्या कहेंगे? कि ये भी कराने लगे, बच्चों पे इतना प्रेशर है। और उस प्रेशर को डील करने के लिए खेल योगा लाई गई, जो चीज़ें बिल्ट होती हैं कि एक गलत आसन सही आसन गलत तरीके करने से क्या हुआ? अब इतने छोटे बच्चों को 3 से अगर वो पढ़ेंगे, योगा पोस्चर्स के बारे में और प्ले वे एक्टिविटीज़ के बारे में, तब उसको बेनिफिट्स पता चलेंगे। फिजिकल फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, स्ट्रेस रिडक्शन एंड एन्जॉयिंग द लाइफ, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इज़ द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग खेल योगा। अब असेसमेंट तो सब चीज़ों की होती ही है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं? अब आपको पता चल गया 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड TWAU। साथ में कंप्यूटर है। इसके अलावा अब CT एंड AI है। CT इज़ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड विद मैथमेटिक्स एंड साइंस। साइंस नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर EVS है, पर हम EVS को भी EVS नहीं बोलते, द वर्ल्ड अराउंड अस। इट इज़ इंटीग्रेटेड इन 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स टीचर्स आर वेरी हैप्पी कि मैम ये तो बहुत आसान है, इसको तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे, कुछ अलग से भी नहीं करना हमें। और अब हमारे कंप्यूटर टीचर्स वो भी बोल रहे हैं कि मैम ये तो हम मैनेज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड थिंग इन दैट। तो जो हमारे चेयरमैन CBSE हैं राहुल सिंह जी, वो यही कहते हैं कि जस्ट फील दिस, कि आप इंडिया को बिलोंग करते हैं और इंडिया की जितनी चीज़ें हैं वो हमने कितना कुछ दुनिया को दिया है, लेकिन आज हम उनके हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को भूल कर चलना चाहते हैं। तो भूलना कुछ नहीं है, भूलने में अब आप सोच सकते हैं कि अब डेट शीट आ गई है, तो असेसमेंट कैसे होंगे? दैट आई विल टेल यू कि 26-27 में व्हाट इज़ द असेसमेंट स्ट्रक्चर for classes 3, 4, 5. There will be 2 periodic tests and there will be 2 term examinations. The date sheet of PT1 has already been uploaded on ERP and it is with you. The syllabus has already uploaded. So this is the scheme. Now notice one thing, कि Hindi, English, Math and TWAU, इसमें आपके जो PT1 है या जितने भी PTs होंगे, उसमें जो एक चीज़ है दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश, लिटरेचर एंड लैंग्वेज नाउ विल नॉट बी सेपरेटेड, कंडक्टेड सेपरेटली बट विल बी कंबाइंड टुगेदर। पेपर एक होगा हिंदी का लिटरेचर प्लस लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर प्लस लैंग्वेज एंड द टाइम ड्यूरेशन विल बी इंक्रीज्ड। इंस्टेड ऑफ 20 इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स, तो ड्यूरेशन बढ़ा के हम देंगे। नाउ द ओनली थिंग इज़ कि ये बच्चे उसको उसी तरीके से पढ़ना शुरू करें। स्कीम आपको मिल चुकी है, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करा भी रहे होंगे, तो ये एक अलग दिन पे हो जाएंगे, अलग तरीके से हो जाएंगे, सो दैट चिल्ड्रन गेट टाइम। एंड 20 मार्क्स में इसको हम रिड्यूस कर देंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट 20 मार्क्स के होंगे। देन कम्स रिपोर्ट कार्ड में कैसे मार्क्स आएंगे। तो PT1 एंड PT2 इनके हम 5 मार्क्स के लिए वेटेज लेंगे एंड इसमें जो बेस्ट हैं उसको, बोथ जो PTs हैं पास होना इसमें बहुत ज़रूरी है। टर्म जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 40 मार्क्स ईच होगा। फाइनल रिजल्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, दैट इज 444। अभी 20 मार्क्स तो इसके होंगे, PTs के होंगे, दैट इज 5 मार्क्स PT का लेंगे हम, पेन पेपर, एंड 5 मार्क्स फॉर मल्टीपल असेसमेंट, 5 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी एंड 5 मार्क्स फॉर पोर्टफोलियो। आपकी नोटबुक भी पोर्टफोलियो के अंदर आएगी। बच्चे अपने जो बेस्ट काम है वो उसके अंदर रखेंगे, अपने सर्टिफिकेट्स उसके अंदर रखेंगे और एक पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे of all the subjects separately. In that portfolio they'll put everything, अपना ड्राइंग का काम है, अपना अपना कोई और एक्टिविटी उन्होंने ऐसी करी है जिसमें उनको सर्टिफिकेट मिला, they will keep everything inside that. Now during this time when the exams come, children feel stressed. I don't know why, लेकिन अभी जो जितने भी बच्चे हैं वो अपना सारा काम करके बैठे हुए हैं। It is just that they are waiting for the summer holidays. So during summer holidays, I request all the parents कि अपने बच्चों को, अब बड़े हो गए हैं, 3 से बच्चे बड़े हो जाते हैं and they can go outside. अब वो बाहर घूमने जा सकते हैं। छोटे बच्चों को ले जाने में दिक्कत लग सकती है कि अभी इनको याद भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, बट 3 के बच्चे अब लिख भी सकते हैं, अपना जर्नल भी लिख सकते हैं। तो उन बच्चों को आप लेके जाइए 3, 4, 5। 3 में कौन सी जगह लेके जाएंगे, 4 में कहाँ ले जाएंगे, 5 में कहाँ ले जाएंगे, साल में एक बार। सो दिस इज हाउ यू विल हेल्प द चिल्ड्रन
to meet different type of people. और क्योंकि इनके पास 6 में फिर और चीज़ें आ जाएँगी, तो अभी से अगर इनकी लर्निंग, इनकी जर्नी ऐसी होगी, खेल योगा की तरह से आगे इनको खेल यात्रा पढ़नी है, तो यात्रा पे ज़रूर लेकर जाएँ। जहाँ पर भी आपको ले जा सकते हैं, आप लेकर जाइए, सो दैट दे नो, जब वो 6 में आएँगे तो उनको पता होगा, व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑल अबाउट, व्हाट इज़ ज्योग्राफी ऑल अबाउट, एंड पॉलिटिकल साइंस, देन इकोनॉमिक्स। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि बच्चों को ही पैसे दे दें, कुछ पैसे, ये जहाँ-जहाँ ऐसी-ऐसी जगह पर हम जाएँगे, ये खर्चा आप करोगे। कर सकते हैं बच्चे, दे विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आल्सो दैट। तो उसमें आप कुछ-कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करिए जो कि इनोवेटिव हों, पर्सनलाइज़्ड हों, उनकी ट्रैकिंग हो और रिपोर्टिंग हो फिर आपको, सो दैट दे नो, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस वर्क। इसके लिए बच्चों को स्कूल में जो हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के लिए नॉट रेट करेंगे, बट हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, इज अबाउट सोशियो इमोशनल लर्निंग। आपके बच्चे कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़े में रहते हैं, कितना ज़्यादा ऐसे हैं कि जो दूसरों के लड़ाई झगड़े सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को आप इस बार सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चा कितना सेल्फ अवेयर है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है मुझे खुद को अपने बारे में कितना पता है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज रिकॉग्नाइजिंग वन्स ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट। आइए आप लोग, कल पीटीएम है, उसमें आइए, अपने क्लास टीचर से नहीं, सिर्फ सारे सब्जेक्ट टीचर से मिलिए, उनका नाम, उनके नंबर सेव करिए, कम से कम 10 मिनट तो हर टीचर को दे के जाइए आप। और पीटीआई से भी मिलिए, उनका पीटीआई कौन है, बच्चे जानते हैं, उनको घूमिए, आप पूरे स्कूल घूमिए, एंड जस्ट स्पेयर some time for your own child and spend some time with their teachers, so that उस बच्चे को ये पता चले कि अब मेरे मम्मी पापा के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो वो मुझे एकदम समझेंगे, सब लोग मुझे समझेंगे, या कोई अचीवमेंट है तो सब सेलिब्रेट करेंगे। इसको पता चलने के बाद जब बच्चा सेल्फ अवेयर हो जाता है, उसे पता चलता है दिस इज माय स्ट्रेंथ एंड आई कैन चूज, आई कैन गो फॉर सीबीएसई क्लस्टर्स। अगर आपके बच्चे जब एज ग्रुप से शुरू होता है क्लस्टर्स में रजिस्ट्रेशन, तो अगर आप अपने बच्चों को बाहर ले जाने की आदत डाल रहे हैं खेलने के लिए, तो फिर अगर कोई गेम बच्चा आपका खेलता है, तो आप रजिस्टर करिए, वो खुला हुआ है, और क्लास 1 तक के बच्चे क्रिकेट अकादमी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सोचिए, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जो अकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इस्तेमाल करिए। बच्चों को अभी से आप ऐसे काम में लगाइए जिससे कि बच्चे फिज़िकली फिट हो जाएँ, न्यूट्रिशियस फूड खाएँ, बीमार कम पड़ें, और पढ़ाई के साथ-साथ में उनका जो एनर्जी है, वो चैनलाइज़ हो फॉर प्रोडक्टिव वर्क। हो सकता है लॉन्ग रन में जाके आपको, इस बच्चे को बहुत बेनिफिट हो, टीम बिल्डिंग आती है, कोऑपरेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, इतने सारे लाइफ स्किल्स तो उनको वैसे ही आ जाते हैं, खेलते-खेलते ही आ जाते हैं। तो दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, हाउ फार यू लिव एंड हाउ यू वुड लाइक टू गो विद योर चाइल्ड। आपके बच्चे का क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है। अगर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे गेम खेलता है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या इंटरवेंशंस अपना रहे हैं आप। तो टीचर से बात करके या स्कूल से सिर्फ बात करके बात नहीं चलेगी। बच्चा क्या चाहता है, उसको आप कैसे लेके चल सकते हैं, हाउ मच टाइम यू आर रेडी टू स्पेयर फॉर योर ओन चाइल्ड, दैट वी रियली डोंट नो। बट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अटेंड ऑल द पीटीएम्स थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आप एक भी बार मिस किया और उसी बार कोई बात हुई, तो फिर आपको उसकी प्रोग्रेस का नहीं पता चलेगा। मार्क्स का तो आपको पता चलेगा, बट मार्क्स, आपको लगता है कि मार्क्स आपको अपनी क्लास, तीसरी क्लास में आपके हिंदी में कितने मार्क्स थे पीटी वन में, आपको याद है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। तो उतने मार्क्स को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। याद रखने की ज़रूरत होती है कि बस हमसे जो गलतियाँ हुई थी, हम वो गलतियाँ नहीं करना चाहते। उन गलतियों से हम सीखते हैं। तो फिर बच्चा क्यों ना सीखे अपनी गलतियों से? वो भी सीख सकता है। So then now we have to understand, if we can learn from our mistakes, why can't children learn from mistakes? Then why don't we give them a free hand to learn from their own mistakes? So this is a request from my side as well from the side of everybody and the school community, that बट बच्चे जानबूझ के कोई गलतियाँ ना करें, जानबूझ के कोई लड़ाई ना करें, कोई दंगा-फ़साद ना करें, या कोई ऐसी बात ना कर लें, जिसमें कि वो भी खतरे में आएँ, आप भी खतरे में आएँ, हम भी खतरे में आएँ। वी हैव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर दैट, एंड दैट इज़ व्हाई द रूल्स आर सेट। दैट इज़ व्हाई द रूल्स आर मेड। द रूल्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डायरी, आप उसको देखिए। सेल्फ मैनेजमेंट, अगर बच्चे को अपने आप को कंट्रोल करना आता है, मैनेज करना आ जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं आएगी। अब अगर कहीं पे भी आप कोई बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर सोशली अवेयर। अच्छी तरीके से बात करें, सोशली अवेयर। इफ यू आर
You are too loud and you're too aggressive or too participative in all the wrong activities. That means you are not having self control and not you are not having self awareness as well as social awareness. ये चीज कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो प्लीज डोंट इंटरवीन. आपको उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए. Let them finish their talk. If we are not really concerned, if we are not directly involved in that, then we must teach our children at home also कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं मुद्दा क्या है. अभी तो दो लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उनका हो सकता है पता नहीं क्या क्या बात चल रही है. तो दिस इज नॉट टॉट एट होम. और आप मुझे ओवर लिस्टिंग भी नहीं करना चाहिए. आपको कुछ पेरेंट्स तो ब्यूटीफुल हैं, उनको पता है वो मैकेनिज्म क्या है कि बच्चे अगर कोई बात लेके आते हैं तो उस बात में उनकी सारी स्कैनिंग करके फिल्टर करके वो टेक आउट दे इंश्योर टेकिंग आउट कि कहीं पे मेरे बच्चे की गलती तो नहीं है. अगर मेरी बच्चे को मैंने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, कल को इस वजह से तो बच्चा मेरी वजह से तो नुकसान में नहीं आ जाएगा. दिस इज हाई टाइम कि आप सोचिए कि हम अपने बच्चों की सोशो इमोशनल लर्निंग के लिए क्या कर रहे हैं. अल्टीमेटली आपको भी सोसाइटी में रहना है, हमें भी रहना है, उन बच्चों को भी रहना है. तो फिर हम सोसाइटी के साथ चलने में फिर किस तरीके से चले, दैट इज कम्प्लीटली अस कि हम हाउ वी रेगुलेट आवर इमोशंस and how we build relationships. So relationship building is the four core competency of social emotional learning, and the last is responsible decision making. क्या हम आपका बच्चा इतना छोटा बच्चा क्लास 3 का रिस्पॉन्सिबली डिसीजन मेकिंग कर पाएगा? आप सोचते वो नहीं कर पाएगा, मैं ही कर पाऊंगा, सारा काम मैं ही करूँ. तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं. हमने उनको 4 हाउसेस में डिवाइड कर रखा है. कलाम हाउस, गांधी हाउस, टेरेसा हाउस और राधा कृष्णा हाउस, जिनको आप कलर कोड से जानते हैं. कलाम हाउस इज रेड हाउस, गांधी हाउस इज येलो हाउस, आरके हाउस, राधा कृष्ण हाउस इज ग्रीन हाउस एंड टेरेसा हाउस इज ब्लू हाउस. ये इतने सुंदर नाम है और उनके साथ में उनकी आइडियोलॉजी जुड़ी है. कलाम हाउस का जो लोगो मोटो है, दैट इज ड्रीम बिलीव अचीव टुगेदर. ड्रीम, believe in yourself that you can do it and achieve together as a team. We all have to achieve together. We are dreaming that your child is going to be a holistic human being. So we are dreaming. We are believing in the child. We are believing in you. We are believing in teachers. We are believing in the education system that we will achieve together. Then Gandhi House is Satya, Ahimsa और सहिष्णुता. That is patience. रेजिलियंसी खत्म हो रही है, टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, कोई भी किसी की बात को देने का समय नहीं देता. इनफैक्ट कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं मैम हमारे पास नहीं है इतना टाइम पीटीएम में आने का, आप तो हर हर तीसरे महीने में पीटीएम रख देती हो. क्यों भाई? फिर क्या हम अपने अपने बच्चों को दिखाने नहीं जाते थे डॉक्टर्स के पास, वैक्सीनेशन के लिए जाते थे? तो यहाँ पर बच्चा बीमार नहीं है, उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए कि इसका कितना वेट हो गया, नहीं वो तो हम देख ही रहे हैं हेल्थ चेकअप में. बट आप आज उसका सिर्फ मार्क्स में मत सोचिए, उसकी प्रोग्रेस इन द सेंस कि वो कितना पार्टिसिपेटिव है, कितना वो एम्पावर कर रहा है अपने आप को. दैट इज द ओनली थिंग यू शुड नो. टेरेसा हाउस इज ह्यूमैनिटी, लव एंड चैरिटी. डोनेट करना सिखाइए अपने बच्चों को. पुरानी किताबें जो बच गई हैं, नोटबुक्स, वो कुछ पुराने कपड़े, तो फिर कुछ नया भी दिया जाए. कुछ लोगों को गरीब समझ कर नहीं, उनके पास वो चीज नहीं है, हमारे पास है इस वजह से, बेचारा समझ कर नहीं. एंड आर के हाउस, राधा कृष्ण हाउस, दैट इज नॉलेज, विजडम एंड एनलाइटमेंट. ये बहुत ऊंची चीज है. यानी कि अगर शिक्षा के बारे में देखा जाए, सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आए हैं आज बच्चे. हम सिर्फ नॉलेज नहीं देना चाहते बच्चों को, तो किताबों में कोई भी पढ़ लेगा, ट्यूशन से भी पढ़ लेगा, घर रह के पढ़ लेगा. कितने बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, वो भी पढ़ ही रहे हैं. लेकिन यहाँ नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करना है, उसको एटीट्यूड में आना चाहिए, वो बच्चों के बिहेवियर में आना चाहिए. जब बिहेवियर में आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ एनलाइटमेंट अब पॉसिबल है. अदरवाइज तो ये बहुत किताबी टर्म है. एनलाइटमेंट होना इज अ किताबी टर्म फॉर सब लोगों के लिए, लेकिन ये सबको नहीं मिलता क्योंकि उतना पेशेंस नहीं है. तो नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट the most overwhelming key to child success is the positive involvement, positive involvement of the parents. एक हाथ आपके बच्चे का, एक हाथ आपका और फिर एक हाथ टीचर का. ये 3 हाथ हैं और ये आप देखिए ये सपोर्ट देते हुए हाथ है या हैंडशेक करते हुए हाथ है, ये जुड़े हुए हाथ है. लेकिन अगर किसी का हाथ उठा तो कितने सारे हाथ उठते हैं. तो फिर जवाब में हाथ उठे बच्चों की, क्लास में प्रॉम्प्ट आंसर देने के लिए हाथ उठे, थम्स अप करें, हाथ उठे तो थम्स अप करें, यस मैम वी आर रेडी. पेरेंट्स के हाथ उठे, यस मैम यू आर डूइंग अ गुड जॉब. और अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इज नाउ हैज बीन चेंज्ड.
कोई बच्चा कोई एप्लीकेशन नहीं लिखेगा, किसी क्लास टीचर को नहीं, किसी टीचर को नहीं. They will come and will collect a form and will write at reception. Will submit with Rajpreet ma'am. अगर वो मेरे लिए कंसर्न होगा मुझे मिलेगा, दीपक सर के लिए कंसर्न होगा दीपक सर को मिलेगा, चेयरमैन सर का होगा तो चेयरमैन सर को मिलेगा. टीचर्स आर टू ऑक्यूपाइड. इस मैकेनिज्म को सक्सेसफुल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं. सब बच्चे फिर उनको वहां पर जब देखते हैं कि कोई दिक्कत आई है, एक के 4-5 बच्चे हो जाते हैं, और वो एक गलत बच्चा गलत नहीं साबित होता, सही बच्चे गलत साबित हो जाते हैं. सही और गलत मुझे नहीं पता कि परिभाषा क्या होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है और उसका हम गलत में साथ दें तो बच्चा एक्चुअली गलत हो जाएगा, और हम चाहते हैं वो सही रहे. For that, we are calling you, we are inviting you tomorrow for parent-teacher meeting, which is going to be offline. The timing is 9 to 9:30, 12:30. If you have any problem, any issues, any concerns regarding your job or your dukaan or your खेत, whatever, तो engagement कहीं है, तो please drop an audio message to your class teacher requesting that I would not be able to attend at this time. Could you please allow me to attend little early? The teacher will definitely seek help for you from us, and will definitely provide you helping hand. There is no doubt about it, but the only concern is that the reporting mechanism is very poor. We are not believing in the process, and that's why बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, वो समझ नहीं रहे. अगर आज आपने हेल्प करी और प्रोसेस को समझाने में आपने हमें बच्चों को हेल्प करा दी, बेटा प्रोसेस यही है. You will not write directly to the principal, you will not directly write to the class teacher or to the coordinator, but to the person who is नीचे. बता दो, हमने टीचर को बोल दिया आप सुन लो, सुन के आप लिख लो, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग अभी मत करिए. क्योंकि बच्चों को अभी एक के कहने पे 4 बच्चे अगर वो काम कर लेते हैं, तो उस एक बच्चे हो सकता है वो फँस भी रहा हो. तो वी आर रियली केयरफुल अबाउट ईच चाइल्ड, बिकॉज़ वी आर बिलीविंग इन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, एंड द गोल ऑफ दिस ईयर इज इंक्लूजन. वी डू नॉट वांट anybody to be left behind. This is the goal of 26-27 inclusion. And now, again, I request you kindly be there with your class teachers, not only with class teachers, kindly meet all the subject teachers of your ward, be it music teacher, डांस टीचर, स्विमिंग कोच और पीटीआई, जो भी आपकी अकेडमी में जो उसने गेम चूज कर रखा है वो भी. एंड बी सपोर्टिव टू द टीचर्स. अगर कोई छोटी मोटी कोई दिक्कत है, बी वेरी वेरी काइंड एंड एम्पैथेटिक टू द टीचर्स टू. इफ द टीचर्स आर देयर टू सपोर्ट यू, you should always be there to support them. Wishing you a very happy PTM tomorrow. Thank you so much. And कुछ अगर टीचर्स आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें किसी चीज़ के लिए, कि हम चाहते हैं कि आप हमसे थोड़ा अर्ली मिलें, इफ़ यू आर रेडिली अवेलेबल, more than welcome. If you are not, thank you very much. And stay connected, read the messages carefully, and if there is any fault, the mechanism has been explained. ERP है, फीस है, ट्रांसपोर्ट है, डायरेक्टली बैंक ना करके प्रोसेस में जाइए. आपको जो रिस्पॉन्स टाइम है, हो सकता है एक हाथ के हाथ आपको सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे या 72 घंटे लगे, बट नॉट मोर देन दैट. यू सी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम का समाधान एकदम नहीं हो जाता है, और उसमें हमें कई बार इतना सारा डेटा भी कलेक्ट करना पड़ता है. मुझसे आपको मिलना है, आप 12 बजे मिलिए, आप 12:30 बजे आ जाइए. आपके लिए मैं थोड़ा पीछे तक रुक सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1:30 बजे के बाद. बट बच्चों को, आपके बच्चों को क्लास से बाहर निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्लास आप हाफ डे लेके जाते हैं, आप सोचते ही नहीं आपके परफॉर्मेंस के लिए, बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए. यू माइट बी रिस्पॉन्सिबल. हाउ मेनी हाफ डेज यू आर टेकिंग योर चाइल्ड बैक होम, और हाउ मेनी रीजन, व्हाट आर द रीजंस. तो आई डोंट नो इफ यू आर बिलीविंग इन दिस, इन लर्निंग प्रोसेस, दैट इट गेट्स हैम्पर्ड. कि अब ये 3 वाले बच्चे, अच्छा अब ये 5 वाले जो बच्चे इस साल हैं, और 3 वाले बच्चे भी, इनको सफल का एग्जाम लिखना है, कैसे सफल होंगे. आप तो रोज बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, और ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो ऑल ओवर इंडिया होना है, एंड दिस इज मैंडेटरी नाउ, व्हिच इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. तो आपके अगर घर में सिस्टम नहीं है, हमें बच्चों को वो भी प्रैक्टिस करानी है. हाउ विल डू ऑल दैट. अगर आपका बच्चा 3 बार वो लैब में ले जाके हम वो काम करने वाले हैं, तो अगर वो 3 बार आपका बच्चा अगर एब्सेंट रहता है, तो वो तो तीनों बार मिस कर गया. और उसमें इतना स्पेसिफिक है दैट द चाइल्ड सिटिंग ऑनलाइन कैन नॉट इवन टर्न द आईज हियर एंड देयर. अब वो एकदम कैप्चर हो जाता है कि आप आउट हैं. वी विल गेट अ कॉल फ्रॉम सीबीएसई कि आपके यहाँ चीटिंग चल रही है क्या. वी डू नॉट बिलीव इन चीटिंग. व्हाट वी नो, and we deserve, if we deserve less marks, we deserve less marks. But on those less marks, we definitely would like to improve ourselves by learning from our mistakes. So we need your cooperation. Thank you very much. Jai Hind. Take care.